Good morning, friends, and welcome to a brand new series on Trans India, Legends of Passenger Transport, presented by CEAT Tires. While our network, Trans Topics, as well as Trans India, has been focusing on the commercial vehicle segment and the road transport segment, but for some reason, our focus has been primarily on freight transportation by road. However, another very important segment in the logistics industry is passenger transport. We cannot ignore the fact that passenger transport is equally important, and so are the issues being faced by the operators in the passenger segment. The biggest setback for the passenger transport segment was COVID. While trucks got back onto the roads in the next couple of days, moving essential goods, buses, coaches, and even private taxis were off the road for a significant amount of time. In fact, we were told that many coaches and buses were gathering dust while in the yards. Many of the buses were off the road for more than a year. However, their taxes, their insurance, their EMIs, they were still going on. You can imagine how tough that period would have been for the bus operators. The government had offered a moratorium, but now when we speak to many of the operators, they tell us that we are actually paying a higher price than what we would have paid otherwise. However, the good news is that passenger transportation is back on track. It is back with a bang. Tourism is growing, passenger movement by road is growing, and so is the business for buses, for coaches, and even for private cabs. And we could not think of a better time to launch the Legends of Passenger Transport, presented by CEAT Tires. It is high time that operators in the bus segment got the recognition they deserve, and their story needs to go out there. The world needs to see how operators in the bus segment have gone through a lot of transition in the last few years. Some of the companies started off with the owner himself driving a taxi or a bus, and today they are owning a fleet of buses. So friends, the Legends of Passenger Transport, presented by CEAT Tires, captures the spirit, captures the journey of select bus operators who have made a mark for themselves in this industry. They are truly legends in this very specialized space of business. Our first legend in the Legends of Passenger Transport series, presented by CEAT Tires, is a man who needs very little introduction. He is charismatic, he has been in this space for a long time, and he is recognized by most people. He heads a company that has diversified into various verticals, and he is not just into carrying people from point A to point B. There is much more that his company has to offer. He also took the bold step of changing his company's identity. He undertook a massive rebranding process to give his company a modern look and that is easily identifiable. So friends, our legend for the month on CEAT Tires presents Legends of Passenger Transport is Mr. Prasanna Patwardhan from Prasanna Purple Mobility Solutions Private Limited, the company which is also known as Prasanna Purple. So friends, coming up after this very short break, our interaction with Mr. Prasanna Patwardhan in the maiden episode of Legends of Passenger Transport, presented by CEAT Tires. See you on the other side of this very short break. कुछ मकान चलते हैं, जरदोजी, बेलबूटे, सुनहरी गोटे वाले पर्दे पहने। इनकी खिड़कियों में कई सूरज निकलते, कई चांद ढलते हैं। कुछ मकान चलते हैं, उम्मीदों जरूरतों की बोरियां लादे, दुआ मजाक चुटकुलों से
दिन रात सड़कें मलते हैं, कुछ मकान चलते हैं। कभी चींटियों की कतार से टहलते तो कभी अकेले शेर से ऐंठते हैं। इन मकानों के चलने से ही तो कई घर बैठते हैं। मकान कई हैं, मकाम एक है। ये देश दौड़ता रहे, बस काम एक है। सीएट, इट हेल्प्स। Endless roads, narrow roads, or no roads. Here comes the tireless X3 series to make your trucks unstoppable. Presenting the exclusive range of heavy-duty tires from Seat. Own the roads. Conquer the toughest terrains with the super tough Wingload X3D. 90-degree ply line seamlessly transfers load and improves load carrying capacity. Tougher tread compound increases resistance to cut throughout a longer failure-free life. Earn more every mile you run on the WinMile X3D. That keeps cool over long stretches, delivering maximum mileage with minimum separation. The WinMile X3D is built to last and can be retreaded multiple times, ensuring a longer life, making it the most cost-effective tire for your truck. Rolls seamlessly across all platforms with the versatile Win Super X3D, integrated with high-strength steel and stiffer bead area package. It effortlessly carries your load across all applications. Optimized tread design helps in evenly distributing load across the tire surface, which gives uniform wear and better mileage. Tough, efficient, and versatile. Propel your business across application as your trucks move unstoppable and operational costs go down. On the exclusive Win Series X3 range of truck radials from Seat. Welcome back to Legends of Passenger Transport, presented by Seat Tires, and we are talking to the legend of the month, Mr. Prasanna Patwardhan. Prasanna ji, can you tell us about the start of the journey of Prasanna Travels? प्रसन्ना ट्रैवल्स की शुरुआत मेरे पिताजी ने की और मैं प्रसन्ना ट्रैवल्स में मेरे ग्रेजुएशन के बाद आया मैनेजमेंट करके 1964 में। लेकिन उसके पहले मेरे दादाजी का भी टैक्सी का बिजनेस था, लेकिन उसका नाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, DR वैशंपायन करके नाम से था। माय फादर स्टार्टेड टूरिस्ट टैक्सी बिजनेस, उनकी येलो कैब्स थी, तो पिताजी ने टूरिस्ट टैक्सी का बिजनेस चालू किया। मैंने टूरिस्ट टैक्सी से बस का बिजनेस में आ गया मैं। तो पिताजी को आई ज्वाइंड इन 1985 और उसके बाद टूरिस्ट टैक्सी का ही बिजनेस बढ़ाता रहा मैं टिल 88 में हमें पहला परमिट मिला और 88 में एक्ट भी चेंज हो गया, तो परमिट ओपन भी हो गया, तो तब से हमारा बस जर्नी चालू हो गया। प्रसन्ना जी, उस वक्त आपके मेन रूट्स कौन से थे? पहला रूट तो मैंने पूना से महाबलेश्वर चालू किया। वो महाबलेश्वर चालू इस प्रकार से किया, तभी मैनेजमेंट सीख के आया था मैं, तो लोगों को जहाँ जहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसेस निकलती है वहाँ जाके सर्वे कराया कि कौन से रूट को ज़्यादा रश रहता है। तो अप्रैल महीना था, तो आंसर तो महाबलेश्वर ही आना था।
लेकिन जैसे ही बारिश हो गई चालू, तो महाबलेश्वर का सीजन खत्म हो गया, गाड़ी एम्प्टी जाने लगी। फिर मेरे पास एक ही बस थी तभी, तो कोई भी नाइट जर्नी चालू करने के लिए आपके पास 2 बस लगती है। तो मैंने फिर पार्टनर ढूंढा, तो मुझे जलगांव का पार्टनर मिला। तो मैंने पूना जलगांव ये लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस पहले चालू की 1988 में, और फिर बाद में हर एक डेस्टिनेशन जो चालू करते गया। फिर टिल 91 विद इन 3 years हमने पूरे महाराष्ट्र के सब जिले में सर्विसेज चालू की ऑलमोस्ट, और नियर बाय स्टेट्स के कैपिटल को, जैसे यहाँ हैदराबाद, इंदौर, यहाँ अहमदाबाद, गोवा, बैंगलोर। तो ये 3-4 साल में पूरी सब सर्विसेज चालू की हमने। So from typical bus transportation, you later diversified to many other verticals. Can you tell us about these verticals? अभी 4 वर्टिकल है टोटल। पहला तो इंटरसिटी का जो मेन बिजनेस हमारा, या मेन बिजनेस रेंटल जो है वो भी एक है, तो इंटरसिटी है। इंटरसिटी के बाद दूसरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का है, जिसके अंदर हम काफ़ी जगह सिटी बस सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट ले चुके। स्टार्टिंग फ्रॉम लुधियाना में भी हमने सिटी बस चलाई, और अभी फ़िलहाल हम इंदौर में चला रहे हैं, सूरत में चला रहे हैं, पूना और मुंबई में चला रहे हैं। तो दूसरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हमने 10 शहरों में अलग अलग सिटी बस सर्विसेज चलाई, जैसे उज्जैन, भोपाल, जलगांव, नगर, दिल्ली में भी चलाई। मेट्रो फीडर सर्विसेज हमने चलाई। फिर दिल्ली में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस चलाई, टूरिस्ट सर्विस। गोवा में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस चलाई। तो ये सब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है दूसरा वर्टिकल। तीसरे वर्टिकल में स्कूल और एम्प्लॉय मोबिलिटी का है हमारा। तो स्कूल्स में हम पूना और चेन्नई में स्कूल्स को बसेस देते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन में चेन्नई, बेंगलोर और पूना, ये 3 जगह एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस और कार्स देते हैं। और चौथा वर्टिकल जो है हमारा, जिसमें हम इंटरनेशनल टूर्स, डोमेस्टिक टूर्स या ट्रैवल एजेंसी जैसा बिजनेस है, जिसको हम प्रसन्ना हॉलीडेज या प्रसन्ना टूर्स बोलते हैं। तो ये चौथा वर्टिकल है। तो ये 4 वर्टिकल्स हमारे इसमें है। इसके अलावा 2 कंपनियां हैं मेरी। एक कंपनी जो है वो प्रसन्ना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से है, जो आप ट्रक देख रहे हैं वो प्रसन्ना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का है, जिसके अंदर हम वेस्ट और साउथ में काफ़ी हमारा नेटवर्क है। हमारे तकरीबन 40 एक जगह ऑफिसेस या वेयर हाउसेस है, और पार्सल सर्विस करते हैं हम, मतलब जैसे सेफ एक्सप्रेस, गति वगैरह करते हैं उस प्रकार से। और तीसरा बिजनेस हमारा मोटेल है ऑन पुणे टू शिरडी रोड, अहमदनगर के पहले कामरगांव करके जगह है, वहाँ मोटेल है जहाँ रेस्टोरेंट्स है मोस्टली। तो ये 3 कंपनियां हैं, और ये एक कंपनी में 4 वर्टिकल्स है। It is very tough for established organizations to undergo a rebranding process. It is an identity change, and it is very important that this identity goes across to the customers and defines the company. Mr. Patwardhan took this bold step, and after a lot of deliberation, after a lot of brainstorming, came up with the name Purple. So what is the story behind choosing the name Purple, and what is its significance? We'll know this and much more from Mr. Prasanna Patwardhan on the other side of this very short break. You are watching Legends of Passenger Transport, presented by Seat Tires. कुछ मकान चलते हैं, जरदोजी, बेलबूटे, सुनहरी गोटे वाले पर्दे पहने। इनकी खिड़कियों में कई सूरज निकलते, कई चांद ढलते हैं। कुछ मकान चलते हैं, उम्मीदों ज़रूरतों की बोरियां लादे, दुआ मजाक चुटकुलों से दिन रात सड़कें मलते हैं। कुछ मकान चलते हैं, कभी चींटियों की कतार से टहलते, तो कभी अकेले शेर से ऐंठते हैं। इन मकानों के चलने से ही तो कई घर बैठते हैं। मकान कई हैं, मकाम एक है। ये देश दौड़ता रहे, बस काम एक है। सीएट, इट हेल्प्स। Endless roads, narrow roads,
or no roads. Here comes the tireless X3 series to make your trucks unstoppable. Presenting the exclusive range of heavy-duty tires from SEAT. Own the roads. Conquer the toughest terrains with the super tough Windload X3D. 90-degree ply line seamlessly transfers load and improves load carrying capacity. Tougher tread compound increases resistance to curb throughout a longer failure-free life. Earn more every mile you run on the WinMile X3D. That keeps cool over long stretches, delivering maximum mileage with minimum separation. The WinMile X3D is built to last and can be retreaded multiple times, ensuring a longer life, making it the most cost-effective tire for your truck. Rolls seamlessly across all platforms with the versatile Win Super X3D, integrated with high-strength steel and stiffer bead area package. It effortlessly carries your load across all applications. Optimized tread design helps in evenly distributing load across the tire surface, which gives uniform wear and better mileage. Tough, efficient, and versatile. Propel your business across application as your trucks move unstoppable and operational costs go down. On the exclusive Win Series X3 range of truck radials from SEAT. Welcome back to SEAT Tires presents Legends of Passenger Transport. We are in conversation Mr. Prasanna Patwardhan. So Prasanna ji, amongst the companies in the transport segment, which is the most profitable one? प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट सब में ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन फर्क क्या है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कभी टाइम पे मिलता नहीं। कंपनी और स्कूल कॉन्ट्रैक्ट में पैसा कम मिलता है लेकिन टाइमली मिलता है। इंटरसिटी में पैसा एडवांस आता है। तो फ्रॉम कैश पर्सपेक्टिव आई वुड से कि इंटरसिटी ये सबसे अच्छा बिजनेस है, जहां अपफ्रंट आप पैसा जितना बिजनेस हो गया उतने पैसे जेब में, बाकी बिजनेसेस का ऐसा नहीं है। हॉलीडेज का भी थोड़ा बहुत, कॉर्पोरेट में हम ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ भी क्रेडिट का इशू आता है थोड़ा, लेकिन पेमेंट टाइमली होता है। वहाँ गवर्नमेंट जैसी सिचुएशन नहीं, 15-20 दिन इधर उधर होता है लेकिन टाइमली मिलता है। प्रसन्ना जी, यू स्टार्टेड ऑफ एज प्रसन्ना ट्रैवल्स, आपके फादर ने जो कंपनी शुरू की थी, एंड देन यू रीब्रांडेड इट टू पर्पल. What is the thought process behind this concept, since Purple is a very unusual name for a transportation business? 2009 में हमारी कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई और हमने डिसाइड किया कि तब तक हमारी महाराष्ट्र बेस्ड ही कंपनी थी, महाराष्ट्र के बाहर हमारा ज़्यादा काम नहीं था। तो तभी हमने सोचा कि अभी ऑल इंडिया बेसिस पे हम काम करेंगे। तो ऑल इंडिया बेसिस पे काम करने के लिए प्रसन्ना ये थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम लगता है, तो मैंने सोचा नॉर्थ में जाएंगे तो लोग बोलेंगे साउथ के आदमी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। तो हमने सोचा कि एक न्यूट्रल नाम होना चाहिए और अंग्रेज़ों का हम पे बहुत भारी प्रभाव है, इसके लिए इंग्लिश नाम होना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लगे आपको। तो जिसके लिए हमने काफ़ी नाम चूज़ किए थे
तकरीबन हमने 2 दिन का 2 टाइम ऐसे हमारे पूरे एम्प्लॉयज के पास से सजेशन मांगे और 3000 के आसपास सजेशंस आए थे। उसमें से पर्पल नाम चूज किया। तो पर्पल नाम चूज इसके लिए किया कि पर्पल इज नॉट अ कलर बाय इटसेल्फ। तो पर्पल ये जो कलर है ये ऐसा पर्टिकुलर कलर नहीं है, इट्स अ फैमिली ऑफ कलर्स। तो हम भी ट्रैवल एंड टूरिज्म या ट्रांसपोर्ट में है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में, लेकिन उसमें हमारी अलग अलग शेड्स है, अलग अलग वर्टिकल्स है। वैसे ही पर्पल में आपको मैजेंटा भी पर्पल है, पिंक नहीं लेकिन पर्पल के काफ़ी शेड्स होते हैं, मो पर्पल है या और काफ़ी अलग अलग नाम है उसके पर्पल के, लेकिन पर्पल के अलग अलग शेड्स है। तो पहला रीज़न तो ये रहा। दूसरा रीज़न ये रहा कि पर्पल कलर ये एंशंट रोमन रॉयल्टी का कलर है। रोमन रॉयल्टी खाली पर्पल ही कलर यूज करती थी और वो सबसे मॉडर्न कलर है। लास्ट 10-15 साल में आपने पर्पल ज्यादा दिखा रहा है, देखते रहेंगे। तो हमको ये भी लोगों को सूचित करना था कि हम एंशंट रूट्स रखते हैं लेकिन हमारे थिंकिंग में हम मॉडर्न हैं। आपने अभी देखा रहेगा हम कितनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये दूसरा रीजन रहा और उसमें से ही एक रीजन यानी हम जो भी सर्विस देंगे वो सर्विस पूरी की पूरी हमारी अपग्रेडेड सर्विस रहेगी, तो रॉयल्टी का एक उसको फील आएगा। तीसरा, पर्पल कलर ना कोई राजकीय पार्टी का है, ना कोई धर्म का है, ना कोई जात का है। तो पर्पल कलर भी इसके लिए क्योंकि वो जब भी आप गूगल में जाके भी सर्च करेंगे तो पर्पल कलर आपको पॉजिटिव इमोशंस देता है। तो ये तीसरा रीजन रहा जिसके लिए हमने पर्पल नाम चूज किया। प्रसन्ना जी, आपने 1980s में बिजनेस ज्वाइन किया, तब से और अब में कितना फर्क है? स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो या लोगों का जो माइंडसेट है जो बसेस में ट्रैवल करते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट यू सी? जब भी हमने चालू किया तभी गवर्नमेंट का बोलता हूँ, गवर्नमेंट के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जीरो था। हमको एक ओपन लैंड दिखाते थे और बोलते थे यहाँ से बस सर्विस आपको चालू करनी है। मेरा पहला गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 2 पेज का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अभी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 400 पेज का हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, नई नई स्कीम भी गवर्नमेंट ला रहा है। तो तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं था एट गवर्नमेंट लेवल। आज गवर्नमेंट लेवल पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफ़ी इम्पोर्टेंस है और उसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान भी है। दूसरा, इंटरसिटी में आप देखेंगे तो तभी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आप लेके जाते हो, इसमें ही खुशी थी। लोग केबिन में बैठ के जाते थे, वो मुड्डा बोलते थे, हम उस पर बैठ के जाते थे। आज लोगों को टाइम पे निकलना, हाइजीन ऑफ द बस, लुक कैसा है बस का, आदमी कैसे बर्ताव कर रहे हैं आपके, ये एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई है। तभी खाली एक जगह से दूसरे जगह जाने की एक्सपेक्टेशन थी, आज एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गई है। So Prasanna ji, with so much change happening around you in various aspects of business, how do you keep pace with these changes? See, change is only constant. चेंज हमेशा होते रहना है। जो आदमी चेंज नहीं करेगा वो आउट ऑफ बिजनेस जाएगा, ये तय है। अभी वापस इलेक्ट्रिक आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा और क्या क्या आएगा, ऑटोनोमस व्हीकल आएगी, कनेक्टेड व्हीकल्स आएगी। तो अगर आप चेंज अडॉप्ट करते जाओगे और कस्टमर को ठीक तरह से सुनोगे और उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते जाओगे तो आपको चेंज को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चेंज अडॉप्ट करना ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होने की आवश्यकता होती है। खाली आपने चेंज अडॉप्ट करने से कुछ नहीं होता है, तो फिर वो भाषण हो जाता है खाली। लेकिन लास्ट आदमी तक, जो आपका ड्राइवर है या क्लीनर है या बुकिंग क्लर्क है या ऑफिस बॉय भी है, वहाँ तक वो चेंज पहुँचने की आवश्यकता है। तो ये कम्युनिकेशन, ये ट्रेनिंग, ये करते रहना बहुत आवश्यक है। प्रसन्ना जी, आपके पास बसेस की एक बहुत बड़ी फ्लीट है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है मैनेजिंग दीज बसेस एंड ऑपरेशंस। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम्स डू यू यूज टू कीप अ ट्रैक ऑन दीज फ्लीट्स
And how do you manage the drivers? एक्चुअली ड्राइवर कंट्रोल करना मेरे को बहुत आसान लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंट्रोल करने से. अनलाइक पीपल्स बिलीव, ड्राइवर्स आर वेरी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल. वो आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, आप उसको आदमी के जैसा ट्रीट करोगे, तो ड्राइवर आपको छोड़ के कभी जाएगा नहीं. मतलब जिस आदमी को 20,000 रुपये मिल रहे हैं ना, उसको 5,000 रुपये भी ज़्यादा मिलेंगे तो भी वो आपकी नौकरी छोड़ के जाएगा नहीं. जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1,00,000 रुपया मिलता रहेगा, 5,000 ज़्यादा मिले तो दूसरी जगह चला जाएगा. तो दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग है. इसको रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि बेचारे को बाहर कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं मिलता. आपने रोड पे देखा रहेगा कोई ड्राइवर को रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो उनको रिस्पेक्ट की ज़्यादा आवश्यकता है. तो वी ट्रीट देम लाइक फैमिली. उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है. तो वो हम समझते हैं और उसी प्रकार से काम करते हैं. इसके लिए हमारे पास आप देखेंगे 25-25 साल के भी ड्राइवर्स है, 30-30 साल के भी ड्राइवर्स है. एक तो इमोशनल बाजू हो गई आपकी, दूसरी बाजू जो है कंट्रोलिंग. अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप एक जगह बैठे बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं. ड्राइवर का पूरा परफॉर्मेंस हमने 8 सब्जेक्ट में बांट दिया है. वो 8 सब्जेक्ट पे उसको बेंचमार्किंग किया है. वो बेंचमार्किंग के हिसाब से उसका स्कोर कार्ड बनता है और स्कोर कार्ड के हिसाब से उसको कुछ नंबरिंग मिलता है और उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस जज किया जाता है. तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी आज हम इतनी गाड़ियां बढ़ा पाए. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इतनी गाड़ियां बढ़ाना या इतने लोगों को मैनेज करना ये इम्पॉसिबल था. तो आपकी सिस्टम्स और प्रोसेसेस भी ठीक होनी चाहिए, उसको सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, आपका बर्ताव आपके स्टाफ की तरफ कैसा है ये भी अच्छा होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें आप मैनेज करेंगे तो ठीक ठाक चलते रहता है. Can you tell us about the control room dashboard? It has a lot of details. Can you explain that? वहाँ हम 2 चीज़ें मॉनिटर करते हैं, एक व्हीकल परफॉर्मेंस और दूसरा ड्राइवर परफॉर्मेंस. व्हीकल परफॉर्मेंस में आपको व्हीकल की क्या कमियां हैं, मेंटेनेंस में क्या इश्यूज है, ये लाइव आपको समझता है ताकि आप टाइमली करेक्शन कर सके उसमें. और दूसरा, ये ड्राइवर की हैबिट्स भी मॉनिटर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, अगर ड्राइवर ने फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाने के बजाय सेकंड गियर में अगर गाड़ी उठाई तो उसका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप मैकेनिकल पावर नहीं यूज़ कर रहे हो, फ्यूल की पावर यूज़ कर रहे हो. तो कोई कोई आदमी को पहले हमारे यहाँ घाट गियर बोलते थे या स्पेशल गियर बोलते थे, उसकी आदत है, तो उसकी वजह से उसका फ्यूल एवरेज कम आएगा. तो उसको सिखाना कि भाई आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी उठानी है. तो ये 8 सब्जेक्ट के ऊपर उसका रैंकिंग होता है, उसमें उसको कहाँ कहाँ कमियां है उसकी, वो एज ए काउंसलिंग उसको सिखाया जाता है. क्लासरूम ट्रेनिंग भी हम करते हैं, लेकिन क्लासरूम ट्रेनिंग का एक लिमिटेशन है, सबको सेम सिखाते हो आप. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये वो आप कॉमन सिखा सकते हो, या हाउ टू कीप कूल इन क्राइसिस, ये जो सब्जेक्ट है. तो हमारे ट्रेनिंग के काफ़ी सब्जेक्ट्स है और ये सब्जेक्ट के हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं. तो ये ट्रेनिंग के हिसाब से भी काफ़ी फर्क आता है. Prasanna ji, the 2 critical components of the operating cost of any bus or truck are fuel and tires. How do you keep a track of these elements to get the best performance? If you treat each vehicle as a individual profit center, तो आपको उसके फ्यूल पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 40 to 50% एक्सपेंडिचर इज ऑन फ्यूल. अगर मेरा 1 पॉइंट कम होता है, 3.5 के जगह अगर मुझे 3.4 एवरेज मिलता है, तो मुझे सालाना 1 करोड़ का लॉस होता है. तो यू कैन इमेजिन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूल. तो जो जो चीज़ें फ्यूल कंजम्पशन पे इफेक्ट करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी, हम वो ड्राइवर को सिखाते हैं कि फ्यूल कैसे बचाया जाए. सेम इज द केस विद टायर. हर टायर नंबर पे मैक्सिमम कौन से गाड़ी ने दिया, मिनिमम कौन से गाड़ी ने दिया. ड्राइवर की भी कुछ हैबिट्स होती है, मैकेनिकल फॉल्ट्स भी कुछ होते हैं जिसकी वजह से टायर का माइलेज कम मिलता है. तो वो रेक्टिफाई अगर करते रहेंगे आप, तो टायर माइलेज भी अच्छा मिलता है. तो ये 2 चीज़ों के लिए डेली मॉनिटरिंग इज द ओनली चॉइस.
आप कभी कभार देखोगे तो वो कभी होने वाला है नहीं। Prasanna ji, during COVID, the bus segment and also the tourism sector were badly hit, and both are actually interrelated to each other. So, are we back to pre-COVID days? I would say we are almost back to normal. और पहले हम जिस नंबर्स पे थे तो वी आर एट 95% ऑफ द प्रीवियस नंबर नॉर्मल। कोई कोई जगह पे देश में कोई जगह पे अभी तक उतनी नॉर्मलसी आई नहीं है, क्योंकि सिंस आई एम ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ बोकी, आई नो पीपल अक्रॉस द कंट्री, इसके लिए कोई जगह पे आई नहीं नॉर्मलसी, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी हद तक नॉर्मलसी आ चुकी है। लेकिन पीछे का जो गड्ढा इतना बड़ा है वो भरने में अभी दिक्कत है, और वो दिक्कतें बैंक के साथ ज़्यादा है सबकी, क्योंकि तभी आरबीआई के स्कीम के हिसाब से लोन्स तो दे दिए, हमने भी खुशी खुशी ले लिए, अभी वो भुगतने पड़ रहे हैं, तो वो डबल वैमी हो गई है, पुराने इंस्टॉलमेंट भी भरो और ये नए इंस्टॉलमेंट भी भरो, तो वो एक तकलीफ है अभी फिलहाल। Mr. Patwardhan has been the president of the Bus Operators Confederation of India, also known as BOKI. So what is happening in BOKI, and why is it that state transport undertakings have been in losses for a long time? We'll talk about this and more with Mr. Prasanna Patwardhan on the other side of this very short break. You are watching Legends of Passenger Transport, presented by CEAT Tires. कुछ मकान चलते हैं, जरदोजी बेलबूटे सुनहरी गोटे वाले पर्दे पहने। इनकी खिड़कियों में कई सूरज निकलते, कई चांद ढलते हैं। कुछ मकान चलते हैं, उम्मीदों ज़रूरतों की बोरियां लादे, दुआ मजाक चुटकुलों से दिन रात सड़कें मलते हैं। कुछ मकान चलते हैं, कभी चींटियों की कतार से टहलते तो कभी अकेले शेर से ऐंठते हैं। इन मकानों के चलने से ही तो कई घर बैठते हैं। मकान कई हैं, मकाम एक है, ये देश दौड़ता रहे, बस काम एक है। सीएट, इट हेल्प्स। Endless roads, narrow roads, or no roads. Here comes the tireless X3 series to make your trucks unstoppable. Presenting the exclusive range of heavy-duty tires from CEAT. Own the roads. Conquer the toughest terrains with the super tough Windload X3D. 90-degree ply line seamlessly transfers load and improves load carrying capacity. Tougher tread compound increases resistance to curb throughout a longer failure-free life. Earn more every mile you run on the Windmile X3D. That keeps cool over long stretches, delivering maximum mileage with minimum separation. The Windmile X3D is built to last and can be retreaded multiple times, ensuring a longer life, making it the most cost-effective tire for your truck. Rolls seamlessly across all platforms with the versatile Wind Super X3D, integrated with high-strength steel and stiffer bead area package. It effortlessly carries your load across all applications. Optimized tread design helps in evenly distributing load across the tire surface, which gives uniform wear and better mileage. Tough, efficient, and versatile. Propel your business across application as your trucks move unstoppable and operational costs go down.
on the exclusive Win Series X3 range of truck radials from SEAT. Welcome back to SEAT Tires presents Legends of Passenger Transport. We are in conversation today with Mr. Prasanna Patwardhan. Prasanna ji, you have been the president of BOKI for some time now. What are the main activities of BOKI? बोकी में हम 3 प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। एक तो पहली एक्टिविटी तो गवर्नमेंट के साथ जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाके वो डिमांड रिक्वेस्ट जो कुछ भी है वो सॉल्व करके लेना, ये एक पहला प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, हमारे लोगों को भी हम कैसा ट्रेन करेंगे, उनको नई नई टेक्नोलॉजी दिखाएंगे कैसी, क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है। इसके लिए भी हमारी जो मीटिंग्स होती है उसमें हम उनको नई टेक्नोलॉजी के लिए अवेयर करते रहते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिक आया, हाइड्रोजन आया, तो वो भी हमारी मीटिंग्स में हम बोलते रहते हैं, स्पीकर्स को बुलाते हैं किसी को, तो वो दूसरा एक काम है। और तीसरा काम हमारा बाकी लोगों से जुड़ के इंडस्ट्री से, यानी मैन्युफैक्चरर के साथ या डीलर्स या ऐसी जो बाकी की संगठनाएं हैं, इनको साथ जुड़ के टोटल इकोसिस्टम को सुधारा कैसे जाए, इसके बारे में भी हम प्रयास करते हैं। There is a constant fair war, between the operators. Does BOKI intervene this to ensure that everybody is making a profit? अभी कई कई जगह वो बिकॉज ऑफ यूनिटी स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में काफ़ी हुआ है, तमिलनाडु में कुछ हद तक हुआ है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ हम इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो इंटरनल राइवलरी इतनी रहती है कि वो करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी एक कोशिश हमेशा जारी रहती है कि स्टैंडर्ड रेट पे सब जन चलेंगे तो सबका फायदा होगा। नहीं तो क्या होता है कि हम दिवाली के दिन खाली बहुत रेट चढ़ाते हैं, तभी सब वो हाईलाइट होता है सब जगह। बाकी के दिन जब भी कम रेट रखते हैं तभी कभी हाईलाइट नहीं होगा, प्रेस वाले कभी देंगे नहीं तभी। लेकिन जब भी दिवाली में रेट चढ़ाएंगे तभी सब जगह हाईलाइट होगा पूरे दुनिया में कि लूट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वगैरह। लेकिन वैसे नहीं है। अगर आप आज भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के साथ हमारे रेट कंपेयर करेंगे तो हमारे रेट अगर साल भर सेम स्टेट ट्रांसपोर्ट जैसे रखते हैं ना, तो लोगों को ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि साल में 365 दिन में से कम 300 दिन हम स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के कम रेट में चलाते हैं। 65 दिन में से भी 50 दिन उनके जितने रेट में चलाते रहेंगे और 15 ही दिन उनसे ज्यादा रेट में चलाते हैं। लेकिन वो 15 दिन हाईलाइट होते हैं सब जगह। Prasanna ji, it has been seen that state transport undertakings are mostly in losses. What are the reasons for this? एक तो इनएफिशिएंसी है, क्योंकि ओनरशिप नहीं है ना किसी की, तो एक इनएफिशिएंसी है। और दूसरे उन पे जो सोशल ऑब्लिगेशंस भी डाले हुए हैं, जिसका रीएम्बर्समेंट सरकार ने टाइमली करना चाहिए, वो रीएम्बर्समेंट सरकार टाइमली करता नहीं है। गड्ढा हो गया तो पैसे मिलते हैं उनको, तो वो भी एक इश्यू है कि पैसा उनको आने में डिले होता है, जैसे हमको भी उनसे आने में डिले होता है। तो दूसरा कारण है। और तीसरा कारण, उनके काफ़ी जगह एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पैर बंधे हुए रहते हैं। सर्टन थिंग्स दे कैन नॉट डू इट ऑन देयर ओन लाइक हाउ प्राइवेट वी डू। तो वो भी एक तीसरा कारण है जिसके वजह से भी वो लॉस में है। लेकिन उनका लॉस समझना इतना आसान नहीं है, काफ़ी चीज़ें बदली करनी पड़ेगी, तभी उनको प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। Prasanna ji, how do you see the overall image of the bus segment? Do the private players bear the brunt of the image of government STUs? मैं ऐसे नहीं मानता, क्योंकि कोई भी एक सेक्टर का नाम खराब होता है ना। आज अगर आप किसी को पूछोगे तो क्या बोलते, अरे बस से आए हो, मुझे बहुत दुख होता है ये सुनने के लिए। दे रिडिक्यूल अ पर्सन हु इज कमिंग बाय बस। तो ये प्रेस्टीज उसको जब भी लगेगा कि बस से आया हूं, तभी इसमें सुधार आएगा।
और जिसमें STU भी है और हम भी है, तो नाम खराब खाली एक का नहीं होता है, नाम पूरे कौम का नाम खराब होता है। तो बस सेक्टर इटसेल्फ हैज अ बैड नेम, क्योंकि लोगों को बस रोड पे अगर डिलैपिलेटेड दिखेगी, खराब बस दिखेगी, तो वो नहीं सोचेगा, वो बोला बस सर्विस ना बेकार है। जैसे प्राइवेट में भी हमारे यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट में एक फ्लॉ है। मोटर व्हीकल एक्ट इंडिविजुअल व्हीकल को पहचानता है, मालिक को पहचानता नहीं, जिसके लिए मैं 100 या 1000 बस का मालिक हो सकता हूं, लेकिन मैं कंपनी नहीं हूं। कंपनी करके मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जिसकी वजह से ये पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिसिप्लिन लाना और क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना ये बहुत डिफिकल्ट है। But as we see, the road infrastructure is getting better and so is the quality of buses. Do you see this sector getting better not just in terms of image but also in terms of traffic? It is getting better. Even today, गडकरी साहब की कृपा है, इतने अच्छे अच्छे रोड बना रहे हैं। तो खाली वो रोड अच्छे बना के भी हमको 80 किलोमीटर पे रखा, ये हमारा दुख है। तो आप प्राइवेट गाड़ी में जाओ, ऑल्टो में आप 140 से जा सकते हो, और मर्सिडीज में जाओ, उसको व्हाइट नंबर प्लेट लगाओ, आप 150 से जा सकते हो, उसको येलो नंबर प्लेट लगाओ, 80 से चलना पड़ेगा। सेम गाड़ी, कोई फर्क नहीं, खाली नंबर प्लेट का फर्क है। तो सेफ्टी का और वो येलो और व्हाइट नंबर प्लेट का क्या रिलेशन है, मेरे तो समझ में आज तक नहीं आया। Prasanna ji, while you are giving training to your drivers and monitoring their performance constantly, the image of heavy vehicle drivers is that of a rash and undisciplined driver. That's the general perception. How can that change and how important is training for drivers? ट्रेनिंग यही ऑप्शन है। कैसे है, आज कोई भी ग्रेजुएट हो गया या थोड़ा बहुत भी सीख गया, तो उसको लगता है कि मैंने ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, दूसरा कोई अच्छा जॉब ढूंढना चाहिए। उसको जब भी ये अच्छा लगेगा ना कि ड्राइवर बनना कोई खराब बात नहीं है। मैं खुद को बोलता हूँ मैं ड्राइवर हूँ, तो ड्राइवर अच्छे लोग जैसे ड्राइविंग की तरफ आएंगे, वो एक है। दूसरा, एज अ ओनर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनमें वो प्राइड लाना, उनको सेफ्टी के बारे में समझाना, क्योंकि पहले जाने वाला तो वो रहेगा, एक्सीडेंट हो गया तो बाकी के बाद में जाएंगे। तो ये उनको अवेयर बनाना, ये उनको समझाना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ओनर। और अभी तो रोड खाली वन वे ज़्यादा हो गए हैं, तो वो इशू हाईवे पे बहुत कम हो गया है जैसे पहले था। लेकिन अभी आप देखेंगे ना, बहुत सारे एक्सीडेंट्स ये टू व्हीलर की वजह से होते हैं। अबाउट 50% एक्सीडेंट्स आर बिकॉज ऑफ टू व्हीलर। लेकिन दोष किसको जाता है? बड़ी गाड़ी को जाता है। बोलेंगे क्या वो रफ आ गया, वो रश ड्राइविंग कर रहा है, इसके लिए आया। ये 17 साल 18 साल का बच्चा जो मोटरसाइकिल हाथ में लेता है और मैन्युफैक्चरर बहुत प्राउडली क्लेम करते हैं कि 0 to 100 in 9 seconds। अरे रोड पे रेस खेलने के लिए जा रहे हो या रोड पे कम्यूट करने के लिए जा रहे हो, तो ऐसे एक्सेलरेटेड, हाईली एक्सेलरेटेड व्हीकल्स की क्या जरूरत है? बाहर आप जाएंगे ना तो 26 साल 25 साल तक आपको हाई पावर की गाड़ी मिलेगी ही नहीं, लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। अलग अलग लाइसेंसेस है। हमारे यहाँ 17 साल का बच्चा 18 साल का बच्चा चला सकता है वो गाड़ी, जिसको अकल भी नहीं है, उसको सेफ्टी समझती भी नहीं है, और यंग ब्लड है, वैसे ही रहता है वो। तो उनको कौन सी गाड़ी हम हाथ में दे रहे हैं? और मैं बोलता हूँ हॉर्स पावर से ज्यादा एक्सीलरेटर जो चलाते हैं ना, फटक करके ऐसे निकल जाते हैं। ये बड़े गाड़ी को क्या समझने वाला है, कहाँ से आया कहाँ जा रहा है? तो बेचारा ट्रक वाला और बस वाला मरता है उसमें, और उसका ही नाम खराब होता है। Prasanna ji, how do you see the future of this segment? I see very bright. See, whoever wants to change is willing to adopt the change, जिसके लिए हमारे देश में इतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। क्योंकि मैं समझता हूँ आफ्टर कोविड पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा हमारे देश का। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार आ रहा है, तो अच्छे रास्ते बन रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है। तो बस बिजनेस के लिए तो मैं बोलता हूँ कि ये
सोने के दिन है आगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, एनवायरनमेंट की वजह से लोगों का फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ गया है, और लोगों का भी एक नज़रिया बस की तरफ देखने का, जैसे वोल्वो या ऐसी जिस प्रकार की गाड़ियाँ आई हैं उस तरफ देखने का नज़रिया भी बदल रहा है। इलेक्ट्रिक बस आने के बाद तो और बदलेगा, क्योंकि बहुत कंफर्ट देती है वो गाड़ी। तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। At Purple, are you using alternate fuels and what is the plan ahead? At present also we are using electric buses. So about 130 electric buses we are plying. और आगे जाके मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन एंड LNG, these are the fuels which will be used more. मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ डीजल खत्म हो जाएगा, CNG खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज में चलते रहेगा, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रिक की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक मैं क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे भी कारण है। उसकी एक थ्योरी है मेरी, जिसको मैं ई सीमा बोलता हूँ। ई सीमा यानी इलेक्ट्रिक सीमा बोलेंगे तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट एंड ई स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी। ये एनवायरनमेंट क्लीन कर रहा है। लोगों को इसमें बहुत सारे शक है, जैसे व्हील टू व्हील कितना एक्चुअली इफेक्टिव है, स्क्रैपिंग बैटरी कैसी करेंगे, बट दैट वी विल फाइंड आंसर्स टू दैट। एफिशिएंट है क्योंकि कस्टमर हैप्पी है, ड्राइवर हैप्पी है, ओनर कम मेंटेनेंस है इसके लिए हैप्पी है, खाली कॉस्ट ज़्यादा है वो कम होते जाएगी। एस स्टैंड्स फॉर साइलेंस, इट इज सच अ साइलेंट व्हीकल। तो वोल्वो ने उनके गोथेनबर्ग में जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ लाइब्रेरी में बस स्टॉप बनाया है, जस्ट टू प्रूव देयर पॉइंट कि लोग इधर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और गाड़ी आके पिकअप करके जा रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो जिसकी वजह से हाउ बस नेटवर्क ऑपरेट से चेंज होने वाला है। आप मॉल के अंदर गाड़ी लेके जा सकते हो, बेसमेंट में बस स्टेशन बना सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। तो एस स्टैंड्स फॉर साइलेंस, आई स्टैंड्स फॉर इमेज, जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बस की इमेज बदले, क्योंकि नई बसेस आएगी, इलेक्ट्रिक आएगी, उसका लाइफ भी ज़्यादा रहेगा। तो आई स्टैंड्स फॉर इमेज, एम स्टैंड्स फॉर मोर किलोमीटर्स, क्योंकि अभी कुछ कुछ ट्रिप्स हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं निकलती है। यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हमारी 15% है, तो हम ज़्यादा ट्रिप्स कर पाएंगे, इसके लिए ज़्यादा किलोमीटर चलेगी गाड़ी, तो कैपेक्स ज़्यादा किलोमीटर पे डिवाइड होगा, तो ये और सस्ती होगी। और ए लास्ट विच स्टैंड्स फॉर एक्सेसिबिलिटी। आज इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन जितना अच्छा है, कौन से भी दूसरे फ्यूल का इतना अच्छा नहीं है। इमेजिन अ विलेज इन हिमाचल, सम रिमोट विलेज इन हिमाचल, जहाँ बिजली तो है लेकिन फ्यूल पंप ही नहीं है। वो बेचारा क्या करेगा, कैसे आएगा? पैदल ही आना पड़ेगा या साइकिल पे आना पड़ेगा, लेकिन वो टेरेन बिरेन ऐसे तो साइकिल पे भी जाना मुश्किल है। वहाँ वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 3 व्हीलर लेके चला सकता है, घर पर चार्जिंग करेगा, चलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल बोलता हूँ, राजस्थान, रिमोट विलेज है, बिजली भी नहीं है, सोलर पे बिजली बनाएगा, गाड़ी भी चलाएगा, घर भी चलेगा। तो मोस्ट एक्सेसिबल एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी, और जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रमोट होगा। Prasanna ji, finally, any advice to youngsters who would like to enter this business or this segment? नहीं, मेरा सिंपल एडवाइस ये है, इफ यू हैव पैशन देन ओनली कम इनटू दिस बिजनेस। क्योंकि ये ऐसा आसान बिजनेस है, ऐसे आपको लगता रहेगा तो ये आसान बिजनेस नहीं है। तो मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए, लोगों को मिलने में खुशी मिलनी चाहिए, लोगों को मैनेज करने का स्किल आप में होना चाहिए। तो आपको पैशन है तो ही आप ये सब कर सकते हो। तो आपको पैशन है तो आ जाओ, इसमें चेंज के लिए हमेशा तैयार रहो, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, नए नए तरीके अडॉप्ट करो, नए नए बिजनेस मॉडल्स अडॉप्ट करो, तो there is a bright future. Well, friends, that was our interaction with Mr. Prasanna Patwardhan, who has not only built a business empire for himself, but he is also the face of passenger transport in many forums. He has adopted many systems
that can be a learning manual for the next generation. We will be back again next month with another legend from the passenger transport industry, someone who has made a mark for himself in this business and has been vocally talking about how tourism has changed and how that is helping passenger transport. We will see you next week with our regular episode. You have been watching Legends of Passenger Transport presented by CEAT Tires. Until next week, stay safe. Jai Hind.